اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ہمارے سامنے جو بیسک عربک کی یہ شیٹ نمبر 12 ہے. انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا ہم کھانے پینے سے متعلق جو جملے استعمال ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم کھانے پینے میں کیا جملے، کیا باتیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک پیٹرن ہوگا اس کا. تو بتدریج انشاءاللہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ہر لیسن میں، ہر ویڈیو میں ایک پیٹرن، ایک رول، ایک گرامر کا چھپا ہوا رول ملے گا آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ، جو کہ بعد میں چیزیں اور بھی زیادہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کہ بھی کھانے پینے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ کھانا ہے تو اکلا، پینے کے لیے شربا، بیسک ورڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ایکشن ورڈ. مثلا انشاءاللہ آج اس کے بعد والے جو ویڈیو ہوگا اس کے بعد والا، اس کے اندر ایکشن ورڈ کے بارے میں بتائیں گے، پاسٹ ٹینس فعل ماضی کے بارے میں، کہ وہ جو ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ہم کیسے یوز کریں اس کو. تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے ملے جلے الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں جس میں ورڈز بھی ہیں، ناؤن بھی ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جب ہم کہیں گے کہ بھی کھانے کے لیے لفظ آتا ہے اکلا، پینے کے لیے لفظ آتا ہے شربا، ہے نا. کہیں گے کہ بھی میں نے کھایا تو کہیں اکل تو، میں نے پیا شریب تو، ایسا رہے گا اسٹائل اس کا. اگر آپ کہیں گے کہ میں کھا چکا ہوں، مثلا میں کھا چکا ہوں یا میں کھا چکی ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 کے اندر، ٹھیک ہے. نمبر 1 کا جملہ ہے، جیسے کہ آپ کہنا چاہیں گے کہ میں کھا چکا ہوں یا میں کھا چکی ہوں، تو آپ کہیں گے اکل تو یا انا اکل تو. انا اگر ابھی نہ بھی کہیں تو اکل تو کے اندر جو تو ہے وہ خود انا کا کام کر رہا ہے اس میں. تو انا اکل تو میں کھا چکا ہوں یا میں کھا چکی ہوں، ٹھیک ہے. اور انا کو ہٹا کر بھی کہہ سکتے اکل تو، لیکن آپ کہیں پر جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر کہیں کہ انا اکل تو، انا اکل تو. لیکن جب ہم بات چیت کرتے ہیں انا اکل تو نہیں کہتے، اکلت ایسے کہتے ہیں، انا اکلت. تو تا کے اوپر جو پیش ہے ضمہ ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں پیش کو. تو اس کو جو ہے نا ہمیں پروناؤنس نہیں کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرتے ہیں عام طور پر. انا اکل تو نہیں کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اکل تو کا مطلب میں نے کھایا، کیونکہ اسی کے اندر جو ہے نا تا بھی چھپا ہوا ہے، تو اور تا. میں نے کھایا اکل تو، تم نے کھایا اکلتا. تو اور تا سے میننگ چینج ہوتی ہے، لیکن وہ کانٹیکس سے یا سیاق و سباق سے معنی جو ہے نا فکس ہو جاتے ہیں، وہاں پر متعین ہو جاتے ہیں، ڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اصل میں ہے انا اکل تو، میں نے کھایا، لیکن کہیں گے انا اکلت، انا اکلت میں نے کھایا. میل فیمیل دونوں کے لیے ہے یہ جملہ. پینے کے لیے لفظ ہے شربا، کہیں گے میں پی چکا ہوں یا میں پی چکی ہوں، ہے نا، یا میں نے پی لیا ہے. تو انا شریبتو، انا شریبتو یا انا شربت، تو کے بجائے جو ہے نا صرف ایسا کہے انا شربت، میں پی چکا ہوں یا پی چکی ہوں. نمبر 3 کا جملہ ہے اس میں کہ بھی میں ناشتہ کر چکا ہوں. تو دیکھیے گا ناشتہ کرنے، صرف کوئی بھی چیز کھانا ہے، اکالا اور شریبا، کوئی بھی چیز کھانا ہے تو اکالا. چاہے آپ کھانا کھائیں، چاہے آپ جو ہے نا فروٹ کھائیں، میٹھی چیزیں کھائیں، کھٹی چیزیں، کوئی بھی چیز کھانے کی آپ کھائیں تو اکلا. لیکن جو ہے نا آپ رات کا کھانا کھائیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، اس کے لیے الگ لفظ ہے جو کہ اس کے بعد آنے والا ہے. تو میں اکل تو میں کھا چکا ہوں، اور شریب تو میں پی چکا ہوں. انا شریب تو میں پی چکا ہوں یا میں پی چکی ہوں یا میں نے پی لیا ہے، میں نے کھا لیا ہے. نمبر 3 کا جملہ ہے کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں. اب یہ دیکھیے گا ناشتہ کرنا اور لنچ کھانا اور ڈنر کھانا، ناشتہ کرنے کے لیے ایک الگ لفظ ہے. یہاں پر اکل تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے انا افطرت، انا افطرت میں ناشتہ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو ناشتے کے لیے لفظ فطور آتا ہے، جو کہ آخر میں ہم نے جمع کر دیا سارے الفاظ. تو میں ناشتہ کر چکا ہوں یا میں ناشتہ کر چکی ہوں تو کہیں گے انا افطرت، انا افطرت، انا افطرت. تو کے ساتھ نکالیے گا آواز اس کی، تو افطرت، افطرت. نمبر 4 کا جملہ ہے میں لنچ کھا چکا ہوں. دیکھیے گا اب یہ لنچ کھانے کے لیے اوپر ہم نے پڑھا اکل تو، کھا چکا ہوں، میں انا اکلت میں کھا چکا ہوں. لیکن دوپہر کے کھانے کی بات کر رہے ہو آپ، تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے کہ اس کے لیے خاص لفظ ہے انا تغدیت،
मैं लंच खा चुका हूँ, मैं या लंच खा चुकी हूँ, या दोपहर का खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, तो उसको अना अकलतु के बजाय हम कहेंगे अना तगद्दैत, अना तगद्दैत। तगद्दैत गदा का मतलब होता है लंच, तो तगद्दैत मैं लंच खा चुका हूँ, इसमें गैन को प्रोनाउंस करेंगे आप, तगद्दैत, तगद्दैत। अच्छा, नंबर 5 का जुमला है कि मैं डिनर खा चुका हूँ। देखिएगा, ये रात का खाना खाने के लिए नया अलग लफ्ज है, तो हम कहेंगे या तो मैं डिनर खा चुका हूँ या डिनर खा चुकी हूँ, तो आप कहेंगे अना तअश्शैत, अना तअश्शैत आयन के साथ में, अना तअश्शैत। आशा का मतलब होता है रात का खाना, गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। ठीक है, तो अना तअश्शैत मैं लंच खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, तो 3 अलग अलग लफ्ज है, 3 अलग जुमले हैं। नाश्ता कर चुका हूँ, अफ्तरत, दोपहर का खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। तगद्दैत मैं रात का खाना खा चुकी हूँ या खा चुका हूँ। तअश्शैत अना अफ्तरत, अना तगद्दैत, अना तअश्शैत। तो ये 3 अल्फाज अलग अलग हैं, इनको याद रखना चाहिए। नंबर 6 का जुमला है, अगर हमें कहना हो कि भी मुझे बहुत भूख लगी है, तो भूख को अरबी में कहते हैं जू, है ना। वलनब्लु, कुरान में भी अल्फाज आए हुए हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस, है ना। तो भूख को कहते हैं जू, लेकिन कहेंगे मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, तो उसको कहेंगे अना जवान, अना जवान आयन के साथ में। तो मुझे बहुत भूख लगी है तो हम कहेंगे अना जवान, बहुत भूख लगी है के लिए, है ना। और जाइउन भी लफ्ज आता है ना। तो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे भूख नहीं है, इनके जुमले देखते हैं अब। तो नंबर 6 का जुमला है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो कहेंगे अना जवान, अना जवान। लेकिन फीमेल के लिए है जवा, औरत कहेगी अना जवा, तो मर्द कहेगा अना जवान, औरत कहेगी अना जवा बगैर नून के। नंबर 7 का जुमला है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो आप कहेंगे अना अतशान, अना अतशान, तो के साथ में, तो के साथ में, अना अतशान, अना अतशान। और फिर औरत के लिए है, वो कहेगी अना अतशा, अना अतशा। तो दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज है, अतशान, अतशा, जवान, जोआ। नंबर 8 का जुमला है, मुझे भूख नहीं है। अगर ये कहना हो आपको मुझे भूख नहीं है, तो हम कहेंगे, मर्द कहेगा कि अना शबआन, अना शबआन, शबआन, शाबान नहीं, शबआन, शबआन। और औरत कहेगी अना शबआ, तो औरत का जो लफ्ज है उसका पैटर्न अलग है। ये जो है ना चंद अल्फाज ऐसे जिनके अंदर जो है ना औरत के लिए अलग पैटर्न है इसमें। तो ये दुरूसुल लुगा के बुक 1 के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो ऑलरेडी आपको ये अल्फाज याद हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो हम कहेंगे कि अना शबआन, अना शबआ, अना शबआन, अना शबआ। तो कहे तो जहन में आ गई बात। हम कहेंगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, अना जवान, मुझे बहुत प्यास लगी है, अना आतशान, मुझे भूख नहीं है, अना शबआन। सारा एक ही पैटर्न है, ठीक है। नंबर 9 का जुमला है, मुझे मछली बहुत पसंद है, मुझे गोश्त पसंद है, मुझे सब्जी पसंद है। तो पसंद है के लिए कहते हैं उहिब्बु, उहिब्बु। नंबर 9 का जुमला देखिएगा, कोई भी चीज अगर आपको कहना होगा मुझे आई लाइक, आई लव, तो उसके लिए लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है उहिब्बु, उहिब्बु। कहेंगे कि मुझे मछली पसंद है, तो हम कहेंगे अना उहिब्बुस समक, अना उहिब्बुस समक, मुझे मछली बहुत पसंद है, अना उहिब्बुस समक। मेल और फीमेल दोनों के लिए, मर्द भी ऐसे ही कहेगा, औरत भी ऐसे ही कहेगी। उहिब्बु के अंदर मेल और फीमेल दोनों शामिल है लफ्ज उहिब्बु में। नंबर 10 का जुमला है कि मुझे गोश्त बहुत पसंद है, तो गोश्त के लिए अरबी लफ्ज आता है लहम, लहम, लहम है हा के साथ में। और उहिब्बु के अंदर भी हा है, उसको सही प्रोनाउंस कीजिए, अना उहिब्बुल लहम, अना उहिब्बुल लहम, अना उहिब्बुल लहम, मुझे गोश्त पसंद है ना। तो उहिब्बु जो लफ्ज है बहुत इस्तेमाल होता है कहीं पर भी। मुझे अरबी जुबान पसंद है, अना उहिब्बुल लुगत अल अरबिया, या अना उहिब्बुल अरबिया। मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अना उहिब्बुल्लाह। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अना उहिब्बुर रसूल। मुझे जो है ना अम्मी अब्बू से मोहब्बत है, अना उहिब्बु अबी व उम्मी। मुझे बहरैन पसंद है, अना उहिब्बुल बहरैन। मुझे मक्का पसंद है, अना उहिब्बु मक्का। मुझे है ना मदीना पसंद है, अना उहिब्बुल मदीना। तो उहिब्बु, 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 आई लव, आई लव, आई लाइक, आई लाइक,
ऐसा ही है। तो मुझे मछली बहुत पसंद है, अना उहिब्बुस समक, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, अना उहिब्बुल लहम। ये दो जुमले हैं। और नंबर 11 का जुमला है कि मैं गोश्त नहीं खाता हूं। अगर कहना हो आपको कि मैं गोश्त नहीं खाता हूं, तो गोश्त के लिए लफ्ज अरबी देखिएगा आपने, ऊपर पड़ा है लहम, तो कहेंगे अना ला आकुलुल लहम या अना मा आकुलुल लहम, दोनों कह सकते हैं। बुक 1 के अंदर ला और मा के अंदर फर्क समझ में आएगा। तो ला आकुल, मा आकुल है ना, ये दोनों अल्फाज जो है ना नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं गोश्त नहीं खाता हूं, अना ला आकुल लहम, अना ला आकुल लहम, अना ला आकुल लहम या अना मा आकुल लहम। मेल और फीमेल दोनों भी ऐसे ही कहेंगे, मर्द भी ऐसा ही कहेगा, औरत भी ऐसा ही कहेगी, दोनों के लिए कॉमन है ये सेंटेंस, ये जुमला। तो अना ला आकुल लहम, अना मा आकुल लहम, मैं गोश्त नहीं खाता हूं। ठीक है, कहेंगे कि मैं मछली नहीं खाता हूं, तो कहेंगे ला आकुल समक, अना मा ला आकुल समक, या मछली नहीं खाती हूं, है ना। तो मैं गोश्त नहीं खाता हूं, मैं गोश्त नहीं खाती हूं, मैं मछली नहीं खाता हूं, मैं मछली नहीं खाती हूं, दोनों के लिए ऐसा ही है। अना ला आकुल समक, है ना, या अना मा आकुल समक। तो समक का मतलब मछली, लहम का मतलब गोश्त, है ना। तो और आखिरी जो जुमला है उसके अंदर 3 अल्फाज ऐसे हैं, 3 वो अल्फाज है जो हम नाश्ते और दोपहर के खाने और शाम के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन नाश्ते को कहते हैं फुतूर, दोपहर के खाने को कहते हैं गदा, गदा, और रात का खाना हो डिनर, उसको कहते हैं आशा। ईशा नहीं बल्कि आशा, ईशा मतलब सलातुल ईशा हो जाएगी, ईशा की नमाज, तो ईशा नहीं आशा, आशा, आशा। तो फुतूर नाश्ता, गदा लंच, आशा डिनर। तो ये 3 अल्फाज हैं। ये देखते हैं हम दोबारा इसको जो है ना, एक मरतबा वो अल्फाज देख लेते हैं जो हमने इस लेसन के अंदर पढ़े हैं। येलो बॉक्स में देखिएगा, इसके अंदर जो है एक लफ्ज पड़ा है अकल तो। अकल तो का मतलब मैंने खाया। शरीब तो, शरीब तो का मतलब मैंने पिया। फुतूर, फुतूर का मतलब होता है नाश्ता, फुतूर का मतलब होता है नाश्ता। उसके बाद एक लफ्ज है गदा, गदा का मतलब होता है लंच। उसके बाद एक लफ्ज है आशा, आशा उसका मतलब होता है डिनर। एक लफ्ज पढ़ा हमने जवान या जवा, उसका मतलब होता है हंगरी, भूखा या है ना। मर्द औरत दोनों, मर्द के लिए जवान, औरत के लिए जवा। और एक लफ्ज पढ़ा हमने इसमें आतोशान, आतोशान ता के साथ में आतोशान, और इसका मतलब होता है प्यासा। आतशा का मतलब प्यासी, है ना, मेल फीमेल। शबआन एक लफ्ज पढ़ा हमने, शबआन का मतलब जिसे भूख ना हो, पेट भरा हो जिसका, उसको कहेंगे शबआन, औरत के लिए शबआ। एक लफ्ज पढ़ा हमने समक, समक का मतलब मछली। एक लफ्ज पढ़ा हमने लहम, लहम का मतलब होता है गोश्त। और एक लफ्ज पढ़ा हमने उहिब्बु, उहिब्बु का मतलब आई लव, आई लाइक, उहिब्बु, उहिब्बु, उहिब्बु। एक मरतबा जो है ना नजर डाल लेते हैं, एक मरतबा मैं पॉज देता हूं, इन जुमलों को आप पढ़ लीजिए ताकि आपको जो है ना सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए इनका। उसके बाद ये वीडियो इंशाल्लाह खत्म करेंगे। नंबर 1 का जुमला पढ़ के देख लीजिए। अना अकल्त, अना अकल्त मैं खा चुका हूं, अना अकल्त मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूं। ठीक है। नंबर 2 का जुमला पढ़ के देखिए। अना शरिब्त, अना शरिब्त मैं पी चुका हूं या मैं पी चुकी हूं या मैंने पी लिया है, अना शरिब्त। नंबर 3 का जुमला पढ़कर देख लीजिए। अना अफ्तरत, अना अफ्तरत, अना अफ्तरत, तो के साथ तो की आवाज को निकालना जरूरी है, यहां पर ता नहीं कहेंगे, अफ्तरत नहीं कहेंगे, अफ्तरत, अफ्तरत। मैं जो है ना नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुकी हूं। नंबर 4 का जुमला पढ़िए। अना तगद्दैत, अना तगद्दैत, गैन के साथ में गैन की आवाज को निकालिए, ग तगद्दैत, 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 अना तगद्दैत। नंबर 5 का जुमला पढ़िए। अना तअश्शैत, अना तअश्शैत, आशा आयन, यहां पर आयन निकालना, आयन की आवाज को। तअश्शैत मैं रात का खाना खा चुका हूं या खा चुकी हूं, अना तअश्शैत। नंबर 6 का जुमला पढ़िए। अना जवान, अना जवान, आयन की आवाज को निकालिए यहां पर, जवान, अना जवान। और औरत के लिए अना जवा, अना जवा। नंबर 7 का जुमला पढ़िए। अना आतशान, अना
अतशान, यहाँ ऐन और ता है निकालने के लिए, आपके लिए ऐन और ता, अत अत अत, अना अतशान, अना अतशान। औरत के लिए अना अतशा, अना अतशा। नंबर 8 का जुमला पढ़िए। अना शबआन, शबआन ऐन की आवाज, अना शबआन, मुझे भूख नहीं है। औरत के लिए अना शबआ, अना शबआ। नंबर 9 का जुमला पढ़िए। उहिब्बुस समक, उहिब्बुस समक, अना की जरूरत नहीं है इसमें, सारे कुछ में ऊपर से नीचे तक जो हमने लिखा है इसमें अना की जरूरत नहीं है। अगर आप, लेकिन आपने जो है ना अना लगा दिया तो उसमें कोई हरज नहीं, जुमला गलत नहीं होगा। लेकिन अना को हटाकर भी आप जो है ना उहिब्बु कह सकते हैं, उहिब्बुस समक, मुझे मछली पसंद है। तो अना से कोई जो है ना वो नहीं है, तो लगाने से भी कोई मसला नहीं है, हटाने से भी कोई मसला नहीं है। तो अना को हमने डाल दिया हुआ सिर्फ। अना उहिब्बुस समक, अना उहिब्बु, हा की आवाज को निकालिए इसमें, अना उहिब्बुस समक, है ना। ये लफ्ज़ कुरान में भी आया हुआ, इन कुंतुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। देखिए कुरान के अंदर जो भी पढ़ते हैं बहुत सारे, ये जो हम जो हमारी सीरीज है बेसिक अरबिक की, ये सारी कुछ जो है ना स्टैंडर्ड अरबी की सीरीज है। अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये कौन सी अरबी है। ये वही अरबी है जो मदीना अरबी के नाम से फेमस है। तो हम जो है ना उसको मदीना अरबी जो दुरूसुल लुग़ा अरबिया है, हम उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम आपको पहले बता दें, छोटी छोटी चीज़ें, इंशाल्लाह उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। नंबर 10 का जुमला पढ़िए। अना उहिब्बुल लहम, अना उहिब्बुल लहम। देखिए उहिब्बु के अंदर हा और लहम के अंदर भी हा है, दोनों हा को निकालिए हलक से। अना उहिब्बुल लहम, अना उहिब्बुल लहम। नंबर 11 का जुमला पढ़िए। अना ला आकुलुल लहम, अना ला आकुलुल लहम या मा आकुलुल लहम। कहेंगे कि मैं गोश्त पसंद नहीं करता हूँ, अना ला उहिब्बुल लहम या अना मा उहिब्बुल लहम, दोनों चलेगा। लेकिन ये मा जो है ना और ला दोनों के इस्तेमाल में हल्का सा फर्क है, जो बाद में बताया जाएगा आपको, डिटेल में नहीं जाना चाहते हम ग्रामर की। तो कहेंगे कि भी मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, अना ला आकुलुल लहम या नहीं खाती हूँ, दोनों के लिए ये अना ला आकुलुल लहम। और अना ला उहिब्बुल लहम ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे गोश्त पसंद नहीं है, अना ला उहिब्बु, है ना, उहिब्बु ला उहिब्बु या मा उहिब्बु, दोनों चलता है। नंबर 12 का जुमला पढ़िए। अना ला आकुलुस समक, मैं मछली नहीं खाता हूँ या खाती हूँ। और मा आकुल भी कहते हैं, मा आकुल ला आकुल एक ही चीज़ है। या कहेंगे मुझे मछली पसंद नहीं है, तो अना ला उहिब्बुस समक, अना ला उहिब्बुस समक, अना मा उहिब्बुस समक, है ना। लेकिन स्पोकन में मा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ला सही है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 13 को पढ़कर देख लीजिए और यही हमारा जो है ना आखिरी जुमला होगा। फुतूर गदा आशा, फुतूर ता को निकालिए, फुतूर ता नाश्ता ब्रेकफास्ट। तो फुतूर गदा, गदा गदा गैन को निकालिए तालू से, गदा। आशा ऐन ऐन हलक से, आशा गदा, फुतूर गदा आशा, फुतूर गदा आशा, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, है ना, लंच एंड डिनर। तो इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह हमारा ये वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।